Hello everyone, this is Razia Boston from Boston Desi Connection, and this is our privilege that we have and we are welcoming actually Prithvi Reddy ji from India, from AAP party, AA party actually, and welcome at BDC. Prithvi ji. Thank you so much. It's my pleasure to be here and talk to you and through you to the Desi community in America. I can only say that I believe that there is a revolution happening in India, truly a revolution that's powered by the people. And I think this is a story that needs to be told, and I'm very happy to come here and share my personal experience as well as the truth about the revolution, which not all traditional media has been telling this story. Very good, wonderful. We are far from India, but India is always in our hearts. And हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं और चाहते हैं कि देखिए इंडिया में जो हमारा जो मतलब इंडिया में जितना पोटेंशियल्स है, जितना रिसोर्स है, वी कैन कम्पीट वर्ल्ड, है ना. उसमें कोई मतलब कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है. और हर लेवल पर तो हम सोचते हैं बहुत सारी बातें उसके बारे में. पर आप ये बताइए कि आपका जो आपकी अपनी पर्सनल जर्नी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की, फिर बिजनेस किया, एंड देन नाउ यू आर इन पॉलिटिक्स. तो ये कैसे हुआ सब? मेरी लाइफ में मैंने कभी कुछ प्लान करके नहीं किया. I did my engineering. I was young. I went overseas. I had a very good job. I believed that the engineering that I saw in Europe could also be done in India and done very much cheaper. तो मैं वापस गया engineering करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था, it was that I missed Indian food. I love having hot idli, sambar for breakfast and biryani for lunch. So I had to go back. When I went back, I had a life-threatening accident where I broke my neck, and they said I would not survive. So बहुत मुश्किल time था. My family, my friends and my wife Pratima, who I used to date those days, they stood by me and it pulled me through. तो उसके बाद because I had lost more than a year, I got into the rat race. I was busy trying to make money, and so I did quite well business wise. Business was flourishing, but मैं real world के साथ touch खो गया था. फिर एक और tragedy हुई जहाँ पे my wife and I lost our newborn twins to natural causes, and that completely shattered me. So 6 months I actually went around meeting various spiritual leaders, asking them why did this happen. वो answer नहीं मिला, लेकिन it got me in touch with the real world. Post that, I became a social entrepreneur. I helped run a school which my father had set up. We've built a platform for helping school dropouts in skill building. I was doing all this until actually the Obama election. The first Obama election में the sheer energy, volunteers, $1 का donations आ रहे थे, और इतना hope और change की उम्मीद थी. That's when I started looking at Indian politics. Indian politics, इंडिया में politics actually एक गंदी शब्द है. घर पे बोलते हैं जब कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है या पुलिस केस होती है तो बोलते हैं अरे यार गुड फॉर नथिंग, गुड पॉलिटिक्स. लेकिन हम ये सोचते नहीं है कि अगर हम लोग एक डेमोक्रेसी है, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी. सो आई स्टार्टेड अ सिटीजन्स इनिशिएटिव कॉल्ड स्मार्ट वोट, जहाँ पे वी ट्राई टू मेक इलेक्शंस मोर मीनिंगफुल. 80% जो सबसे पहले वोटर टर्नआउट इंडिया में 50% होती है, एंड उसमें से 80% इन्फ्लुएंस्ड वोट है, जहाँ पे रिलीजन, कैस्ट, पैसा, मसल पावर, पीपल वोट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. बट व्हेन आई स्टडीड दिस, आई रियलाइज दैट पीपल आर वोटिंग दिस वे बिकॉज उनका चॉइस नहीं है.
कोई अच्छे लोग हमारे देश में पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हैं और इलेक्शन कभी लड़ते नहीं हैं। सो इस टाइम में इंडिया में करप्शन बहुत पीक में था, और जो मेरा स्टेट था कर्नाटक, वहाँ पे तो आयरन ओर का लूट चल रही थी, और मैंने सोचा बहुत हो गया। तो तब हमने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, करप्शन साकू। करप्शन साकू फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बन गया। मैं बहुत क्लोजली अन्ना हज़ारे, जस्टिस हेगड़े, अरविंद और प्रशांत जी के साथ काम किया। उसके बाद 2 साल के बाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलके एक बहुत गंदी एंटी करप्शन लॉ बनाया, जिसमें से कुछ होप ही नहीं था। और जब हम लोग 2 साल के बाद हम लोग अनशन कर रहे थे, और पॉलिटिकल क्लास बोलना शुरू किया कि कानून मैदान में नहीं बनती है, अगर आपको कानून बनाना है तो आप इलेक्शन लड़ लो, जीत के आके लॉज बनाओ। सो दैट्स व्हेन हम सब लोगों को हम लोग एक मुसीबत में थे, क्योंकि हम लोग कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए नहीं निकले थे। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हम नहीं करेंगे, सचमुच एक बदलाव लाना है, तो अगर यही एक रूट है तो हम लोग ये भी करने के लिए तैयार हैं। 3 साल हुई है। एक बहुत छोटा पार्टी है आज भी, लेकिन उनके पास पैसा होगा, उनके पास मसल पावर होगा, उनके पास पुलिस होगी, लेकिन हमारे पास लोगों का दिल है और वॉलंटियर्स का जुनून है। राइट, वो हो रहा था क्योंकि देखिए करप्शन जो इंडिया में है ना, वो रूट में है, वो माइंड सेट है उस पर, एंड दे डोंट थिंक कि ये गलत कर रहे हैं एंड इट हर्ट्स आवर कंट्री, यू नो। तो वो माइंड सेट तोड़ना बहुत ज़रूरी है ना। मेरी ओपिनियन ये है कि पॉलिटिशियंस हमेशा बोलते हैं कि लोग करप्ट हैं। लोगों को आप ऑप्शन नहीं दिए इतने साल, क्योंकि अगर मुझे लाइसेंस बनाना है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं जाके 500 रुपया दूँ, क्योंकि नहीं बनती है। आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि अगर मैं पैसा नहीं दूँ तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगी। तो एक तरह ये सर्वाइवल की मामला बन गई थी। आई हैव फर्म बिलीफ दैट गिवन अ चॉइस, Indians are not corrupt. Human beings are not corrupt. No one will pay money if they don't have to. But India में इतना आज भी सिचुएशन इतना ख़राब है कि कुछ भी काम बिना पैसे की नहीं होती है। मैं 2000 में यहाँ आई थी जब, तो आई नो what I did to get my visa and all side thing. So that is why it hurts, because we all are going through all these, of course there is no such word to describe these things. It is corruption. तो आपको क्या लगता है जी, जितनी भी ये हमारे यहाँ जो 50+ 60+ जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको नहीं लगता कि अब नया खून आना चाहिए, नौजवान आने चाहिए, अब न्यू जनरेशन विल गेट? 65% of India is below the age of 35. 50% is below the age of 25. No other political party but the Aam Aadmi Party represents the youth. Which in a democracy, are you representing the majority? नहीं हो रही है. So I am saying, in our party, the highest decision-making body, which is the Political Affairs Committee, the average age is in late 30s. हमारा treasurer 27 years का है, हमारा organization secretary 28 का है. Recently जो पंजाब में कैंपेन चली, एक छोटा गांव लंबी से के बाहर एक छोटा गांव से जो लड़की आई थी 18 साल की, she was a star campaigner. Imagine an election campaign where you have Arvind Kejriwal on stage, but people come to listen also to this girl, 18-year-old बच्ची जो गांव से आई है. So I think
the reason no political force can stop the Aam Aadmi Party is because it represents a new India. Indians who have decided to take charge. आज भी 2-3 दिन से जो मैं यहाँ पर हूँ, I realize one thing. You can take an Indian out of India, but you can't take India out of an Indian, right? You may be, it's not important where your body is, it's important where your heart is. And I find that most of the Indians I have met in the past 3 days, they may be physically here, but their heart is in India. And given an opportunity where they can make a decent, honest living in India, I think all these people would love to come back. मैं आपको बताऊँ, अभी एक फिल्म आ रही थी दंगल, उसमें नेशनल एंथम हुआ, वहाँ पे इंडिया में कितना शोर हुआ कि लोग खड़े नहीं हुए या हुए, लेकिन यहाँ बॉस्टन में ये वो फिल्म चली है और हम यहाँ खड़े हुए हैं और किसी ने नहीं कहा हमसे कि खड़े हो, और अगर हम नहीं होते तो कोई हमसे नहीं कहता, कोई सवाल करने वाला नहीं था। वहाँ लोगों को मारा गया, लेकिन यहाँ हम लोग खड़े हुए थे। There's a very wrong concept of patriotism, right? Patriots are not only those soldiers who fight to protect your borders. Patriots are people who fight for what is good for the country and its people. मैं सोचता हूँ जो भी लोगों के लिए के अच्छाई के लिए लड़ रहा है वो सचमुच पेट्रियट है, एंड आई कैन सी many of them I've met in the past 3 days. आफ्टर पार्टीशन हमारी 70 साल हो रहे हैं और हम 70 साल में सिर्फ राजनीति जो हो रही है इंडिया में वो या तो बॉर्डर पर है, या तो फिर वो रिलीजन पर है, या तो वो फिर हेट्रेड पर है। मतलब इनमें से कोई भी लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वी आर गोइंग अगेंस्ट इंडिया एवरीवेयर और ईच वेज वॉट एवर दे आर डूइंग। सो ऐसे में किसी एक नई पार्टी का बनना और आना तो ये फ्रेश एयर है for the entire Kashmir to Kanyakumari, for everybody. So हम तो यही चाहेंगे कि कोई ऐसी हुकूमत आए, कोई ऐसी पार्टी आए जो हेट्रेड की, जो रिलीजियस बेस्ड ना करे, जो ये सोचे कि इंडिया को उठा के बेस्ट पावर कैसे बनाना है, जो उस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इंडिया को मोस्ट पावरफुल कंट्री बना सके। और आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। अगर हम सब मिल जाएं तो इट विल गो ओवरनाइट, आई वुड से, बिकॉज वी हैव सोर्सेज, वी हैव पैशंस, वी हैव द वे टू गो, राइट। बस कोई ऐसा है नहीं है जो हाथ पकड़ के कहे कि इधर आ जाओ। व्हाट डू यू थिंक? I want to, through your channel and through y'all, I want to pass a message कि आज तक इंडिया में जितने भी बैड पीपल थे वो सब इकट्ठा होके काम कर रहे थे, मिले हुए थे। When the bad guys can come together, why can't the good guys come? I think the only problem this conference has been discussing India global power. Remember, we were the richest nation in the world one day. The only reason we are not there today is because of our bad politics. Arvind ji has said one thing. He says India has first-class citizens, but we have third-class governance. And that is the only thing that's holding us back. But I think कि एक revolution शुरू हुई है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, अभी बहुत कुछ काम करना है। But I have that firm belief that something that is powered by the people cannot be stopped by any force. Of course not. But one more question यहाँ मेरे जहन में ये बात आ रही है कि पैसा can buy anything in the world. So these parties have money, you know, and they are playing with that, especially media. What do you think? I agree completely, because it's very unfortunate that the fourth pillar of a democracy in India is today become nothing but representative of certain interests. I'm not saying all. In every walk of life you have good people. So I don't want you to take this as my observation against all media. But I would say a large section of the media is today controlled by corporate interests, who in turn are sponsoring political parties, and it is you scratch my back, I scratch your back. So
it's high time the real journalists who have the courage to tell the truth. If we've done something wrong, including the Aam Aadmi Party, including Arvind Kejriwal, you must criticize. And it's only when you have that kind of an independent media that can we really see, because media is after all a vehicle to communicate. And we struggle at times, mainly because जब तक कल session में one of the famous media personalities was saying that people criticize us लेकिन हम लोग बहुत neutral है वगैरह, आप लोग उल्लू बना रहे हैं पूरा दुनिया का. And I am trying to say, if even here we are sitting here in Boston and we can see the change. Absolutely, how it absolutely, comes. absolutely. So I think good people, not just in a political party, but across the spectrum, in the media, from everywhere, you actually need to come together to believe in yourselves. आप अरविंद केजरीवाल या पृथ्वी रेड्डी पे, मैं यहाँ पे आके ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पे भरोसा करो. मैं बोल रहा हूँ आप अपने आप पे भरोसा करो. आप हाथ मिलाओ, हम लोग साथ मिल के ये. लेकिन एक चीज़ में यहाँ एक जो बहुत सिर्फ सारी जिम्मेदारी, भाई मीडिया करप्ट हो गया, मीडिया इज़ अ पिलर, मतलब जो की है इस सारी सिचुएशन की, वो है आम लोग. वो कैसे उस बात पर खामोश हैं कि ये मीडिया गलत काम कर रहा है, एंड वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, राइट. तो आम आदमी जो है उस तक ये बात पहुंचाना और उसको अपने साथ मिलाने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? तो सबसे पहले आई बिलीव दैट we are a very old country, but we are a very young democracy. 70-year-old for a country. We are actually a 68-year-old country, which is 68, 69. We are a bachcha in terms of a country. So we need to discover ourselves. But for change, it's very important that you first realize कि problem है. अगर आप हमेशा बोलते रहेंगे हम बहुत अच्छे देश है, if you keep telling, then you say ठीक है यार, जब ठीक है तो change क्यों करें? So firstly, recognize that we are a very young democracy, we are evolving, and I think that the first thing that has to change in India, traditionally, culturally, we have always been ruled. पहले राजा महाराजा थे, फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिश आए. आज फ़र्क सिर्फ ये है कि हम लोग वोट डाल के हम राजा महाराजा बना रहे हैं, राइट. सिर्फ वोट डाल के हम महाराजा बना रहे हैं. So in this situation, it is very important to realize that in 1947 we chose democracy, जहाँ पे an elected representative is only serving you. मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अगर एक दुकान जाए, 12 अंडे के पैसे दिए, वो एक भी अंडा कम दिया तो आप उसके साथ झगड़ा करेंगे. तो जब आपकी टैक्स की पैसे की लूट हो रही है, आप पूछते क्यों नहीं है? They are getting away because हम लोग पूछ नहीं रहे हैं. असल में क्या हुआ था, आफ्टर पार्टीशन हमें हमारी कंट्री वापस मिली थी, सो वी वर एंजॉयड, और हम आज भी उस नशे में हैं कि वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ. एग्जैक्टली वो जो डिफरेंस है चीज़ का, कि अगर इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस, व्हाट इज़ फ्री. वो चीज़ हमारे दिमागों में है. तो हम लोगों को ऐसा लगता है, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ लोगों को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, वहाँ सोशली, इकॉनमी, everything we need to educate them कि this is the difference. And I think even AAP को भी मेरे ख्याल में इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरह इनके माइंड को एजुकेट किया जाए. हम ये नहीं कह रहे कि हम मोल्ड कर दें या उनको अपनी तरफ गलत तरीके से मोड़ लें, लेकिन एटलीस्ट वी कैन गिव देम एजुकेशन कि दिस इज़ फ्रीडम एंड दिस इज़ नाउ, दिस इज़ आवर कंट्री एंड वी हैव टू गेट इट, मेक इट बेटर.
यू नो, तो ये चीज़ जो क्या कर हमारी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेक इन इंडिया. सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन टेलिंग द वर्ल्ड टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया कर. लेकिन मेक इन इंडिया हम करने के पहले हमको मेक इंडिया करना है. एजुकेट योर पीपल. यू आर वेरी वेरी राइट दैट वी नीड टू एक्चुअली tell people the difference between a democracy and a monarchy. For that to happen, people need to see a difference. People need to see hope. I think Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party is showing people that if you take responsibility for your own life, things will be okay. People are shocked how Delhi may be 167 out of 70 seats. Is it because of Arvind Kejriwal? No. It is because people in Delhi decided, bahut ho gaya, we want to take care of ourselves. And I think it's a matter of time. It's a matter of time before this positive energy, जो ये एक तरह की हवा चल रही है, सारे स्टेट्स में आ जाएंगे. इंशाल्लाह ज़रूर आएगी. सो अभी तक की जो पिछले 70 साल की 60 साल की जो सिचुएशन है वो जो भी हमारे थे, तुर्क आए, मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर और अब पॉलिटिशियन आ गए. लुक्स लाइक दैट देयर इज़ नो डिफरेंस. वो भी लूट रहे थे, आप भी लूट रहे हैं. अभी काले आ गए. अभी यार सी इट्स योर कंट्री. इट विल, इफ़ इंडिया इफेक्ट, यू विल इफेक्ट टू. आप कहाँ जाओगे भाग के? हर आदमी तो अपना प्लेन पकड़ के नहीं भाग जाएगा ना, कुछ तो रहेंगे यहाँ पर. तो उसको बनाने के लिए जो एलीट के हाथ में चली गई है पूरा सिस्टम जो चला गया है, इकॉनमी भी चली गई है, पॉलिटिशियंस भी हैं, ये जो मीडिया भी है. तो इसको रूट से निकालने के लिए क्या कॉन्क्रीट प्लान है, या आप क्या सोच रहे हैं कैसे इसको जड़ से उखाड़ के फेंकें, जैसे कि हमने अपने इन्वेडर्स को फेंका था, जैसे हमने अपने ऊपर हुकूमत करने वालों को फेंका था? सो मेरे ख्याल में इसका एक हिस्ट्री है. कुछ देशों में आज़ादी के लिए बहुत खून बहा है, लेकिन इंडिया का इंडिपेंडेंस जो मिला, we got a very peaceful, because of Gandhiji's non-violence, we got a very peaceful independence. So that has made people very complacent. This is our country. The youth, हमारे जैसे लोग, most of our life is over. But the youth need to believe that they have their whole life ahead of them, and unless they take charge, अगर आप जैसे आपने डिस्क्राइब किया, अगर हम लोग अपने पॉलिटिशियंस पे छोड़ेंगे तो वो लोग सर्वनाश कर देंगे. हम लोग 2014 में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चला, अच्छे दिन सबके साथ सबके विकास. मैं तो जो देख रहा हूँ सबके साथ विनाश हो रही है, विकास तो नहीं हो रही है. और एक भी जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, एक भी चीज़, वेदर वॉर अगेंस्ट करप्शन ले लीजिए, जॉब्स ले लीजिए, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 20 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल में. अभी 3 years हो गया, दे हैव नॉट इवन क्रॉस्ड लाइक 5 lakh jobs. So I'm saying 5 lakhs कहाँ और 2 करोड़ 20 करोड़ कहाँ. So I'm saying people need to ask him. And जब लोग पूछने लगे हैं तो ये डिमोनेटाइजेशन किया, तो इट वाज जस्ट टू ट्राई एंड प्रूव मैं आई वांट टू फाइट. सो सब कुछ जो हो रही है एक ड्रामा जैसी हो रही है. एंड इट्स सैड दैट a lot of the media is not also willing to tell the truth of how people have suffered. इंडिया का जो छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, they have suffered. and एक बार सफ़र हो गया, farmers, you have grown your crop of onions, अगर जो वो हार्वेस्ट में आ गया और डिमोनेटाइजेशन के वास्ते कोई लिया नहीं, What happens? 6 महीने का वो घर पे, how is he going to survive?
लास्ट ईयर रेवती जी आई थी एंड शी इज़ वर्किंग इन सुंदरबन, जो ज़मीन ख़राब हो जाती है उस पर काम कर रही हैं, काफ़ी काम कर रही हैं। उन्होंने जो स्टोरीज़ बताई थी कि हमारे फार्मर, यार अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर वन डे, वी डोंट नो हाउ टू। कल पता नहीं कि मैंने वो स्पीच में बोला कि नहीं, इंडिया में एक बहुत अजीब चीज़ है। अगर आप ये फूड चेन ले तो सीड कंपनी पैसा बना रहा है, फर्टिलाइज़र कंपनी पैसा बना रहा है, होलसेलर पैसा बना रहा है, रिटेलर पैसा बना रहा है, रेस्टोरेंट वाले पैसा बना रहे हैं, सिर्फ अन्नदाता पैसा नहीं। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट कि people had a lot of hope from Modi ji. He said, we will give 50% profit to the farmers. Profit छोड़ो भैया, जितना पहले आता था उतना तो दे दो। मतलब उन्होंने बताया कि फार्मर्स की ये हालत है इस वक्त कि उनको अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी किडनी बेचनी पड़ रही है। तो अगर ये एक स्टोरी नहीं है, ये फार्मर कम्युनिटी की स्टोरी है। तो अगर ये सिचुएशन है इंडिया में, तो हम कैसे मतलब बिलीव करें कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? मुझे इंडियंस पे, अपने लोगों पे पूरा भरोसा है। तभी मैंने बोला ये एक रेवोल्यूशन है, एंड थ्रू दिस रेवोल्यूशन आई बिलीव दैट इकोनॉमिक वेल-बीइंग, जस्टिस, हार्मनी, पीस एंड हार्मनी, we have as a very diverse country. आज भी, if all the religions and caste, if you take the politics out of it and don't use it for divisive purposes, लोग इतने प्यार से रहेंगे. It is just because they want votes that they divide people. So I think the Aam Aadmi Party, whenever we go and do a campaign, some particular sections will ask, आप हमारे लिए क्या करोगे? हम लोग हमेशा बोलते, let's not talk religion or caste, let's talk about problems. हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बात करते हैं, जॉब्स के लिए बात करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ये प्रॉब्लम्स के बारे में, ये यूनिवर्सल है। हाउ डज माई रिलीजन कम इन टू प्लेस व्हेन पॉवर्टी इज देयर? भूखे से तो दोनों मरेंगे ना। ये तो है खैर, और होपफुली के अच्छा वो हम लोग जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करते हैं, ना वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, पर आज हम ये देख सकते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है और किस पार्टी ने क्या किया है हिंदुस्तान के साथ। तो एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन इंडिविजुअल, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है इसको, और हम अभी इंडिया से बहुत दूर हैं, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोग को बहुत सफोकेशन अंदर फील हो रहा है कि इस कंट्री में इतनी हेट्रेट आ गई है कुछ चीज़ों के लिए कि अब पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम कर रहा है। यानी इतनी हेट्रेट है, इट वाज सो बैड टू सी दैट कि इतनी पुरानी दोस्ती है यार, तुम मज़हब के लिए तुम अपने घर में पूजा करो, मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ रही हूँ, एंड दैट्स इट, ख़त्म बात। वेरी सिंपल आंसर टू दिस. The Congress party was a very corrupt party. The BJP is not just corrupt, they're also communal. So I think the country needs a choice, and I think Aam Aadmi Party is that choice. और हम यहाँ से जो कर सकते हैं सारे इंडियन, फॉर टू मेक इंडिया the best country in the world, we are with the people who are doing for, or who are serving for the country. Thank you so much for joining us today. Thank you so much.